आदाब। वन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नेपाल में आया जोरदार जलजला, सैकड़ों लोगों की हुई मौत। मिनिस्टर स्मृति ईरानी के इल्जामों पर वेणुगोपाल ने दिया जवाबी हमला। कहा, जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है ईडी। वजीर हरीश राव की तनकीद, तेलंगाना के गद्दार इलेक्शन में हो रहे हैं इकट्ठे। नेपाल में जुमे की रात तकरीबन 11:32 पे 6.4 शिद्दत का जलजला आया। उस वक्त 37 लोगों की मौत की खबर आई थी। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुबह तक ये तादाद 141 तक पहुंच गई है। सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचाने की भी खबर आई है। जलजले के झटके सबसे ज्यादा जजारकोट और रुकुम मगरबी जिलों में देखे गए हैं। जलजले का असर भारत में भी देखा गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम हिंदुस्तान में किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल के खिलाफ सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा, साथ ही उन पर रिश्वत लेने के इल्जाम लगाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत है। कल भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। नेक्स्ट। Multiple searches, recorded statements have also led to seizure of proceeds of crime worth 450 crores. In the electoral history of our country, never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai, by looting the poor, has been utilized by the Congress leadership to fight an election. Bhupesh Baghel has keenly bet on proceeds of crime, has redefined corruption. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर मिनिस्टर स्मृति ईरानी के इल्जामों पर वेणुगोपाल ने जवाबी हमला किया। कहा, जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार ईडी बन जाता है। हमने कर्नाटका चुनाव में देखा है। चुनाव के दौरान खुद उन्होंने 100 से ज़्यादा कांग्रेस कैंडिडेट्स पर धावा बोला था। उन्होंने ये भी कहा कि अब मिजोरम समेत 5 रियासतों में आवाम का मूड बिल्कुल साफ है। सभी रियासतों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। They have only one weapon with them, ED. Chhattisgarh, for example, Chhattisgarh and Rajasthan, our government was so popular. The scheme of these two governments are reaching to the common people of the two states. And the entire state is now praising about the Congress government's welfare activities. They have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. They are continuously targeting Bhupesh Baghel, who is coming from the grassroots level and become one of the most popular Chief Minister of this country. वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के गद्दार इस इलेक्शन में अब इकट्ठे हो रहे हैं। बीजेपी पवन कल्याण के साथ है, जिन्होंने ये कहा था कि वो तेलंगाना का ऐलान सुनने के बाद खाना नहीं खा सके थे। वाईएसआर ने तेलंगाना की मुखालफत की थी। उनकी बेटी शर्मिला कांग्रेस की हिमायत कर रही हैं। ఇయాల రాష్ట్రంలో కూడా ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు। ఇయాల పవన్ కళ్యాణ్ తోనేమో బీజేపీ చేతులు కలిపినరు, షర్మిలమ్మ కాంగ్రెస్ లో కలుస్తుందట। అంటే వీళ్ళు ఎవరు? వీళ్ళిద్దరు తెలంగాణ ద్రోహులు కాదా? ఆనాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నాడు? తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రకటిస్తే నేను భోజనం మానేసినా నాకు అన్నం తినబుద్ధి అయితలేదు అన్నాడు।
తెలంగాణ రావడం ఇష్టం లేని భోజనం మానేసిన పవన్ కళ్యాణ్తోనేమో బీజేపీలు చేతులు కలుపుతారు. ఇక తెలంగాణ ఏమంటే ఆనాటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సిగరెట్టా బీడీయా అన్నాడు. 100 కోట్ల మంది ఒప్పుకుంటే తెలంగాణ అన్నాడు. తెలంగాణ రావడం నేను బతికుండంగా కానే కాదన్న ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన ఆమె కుమార్తె వైఎస్ షర్మిల గారు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తారట. లోపలికెళ్ళి తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు సపోర్ట్ చేస్తారట. చంద్రబాబు గారేమో ఓట్లు జీలద్దని ఇవాళ తెలంగాణలో పోటీ చేయ అంటాడు. వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్కు మద్దతు అంటది. తెలంగాణ ఇస్తే అన్నం తినబుద్ధి అయితే లేదన్న పవన్ కళ్యాణ్తోనేమో బీజేపీలు చేతులు కలుపుతారు. అంటే ఇవాళ మనకి ఏమర్థమవుతుంది? తెలంగాణ ద్రోహులంతా ఒకటైతున్నారు. स्पार्क लाइफ मूवी प्रमोशन के हिस्से के तौर पर एक्टर वेंकटेश रेड्डी और रुखसार ढिल्लों ने कडपा में एक हलचल मचाई जब वो कडपा के मशहूर अमीन पीर दरगाह पर हाजिरी दी और ख़ास दुआ की। वेंकटेश रेड्डी और रुखसार ढिल्लों ने बताया कि फिल्म स्पार्क लाइफ 17 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है। बाद में उन्होंने दरगाह की अनफर्दियात के बारे में दरियाफ्त किया। మా స్పార్క్ మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇవాళ కడప అమీన్ పీర్ దర్గాకి రావడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఒక మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది మాకు. ఖచ్చితంగా మా మూవీకి బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి, మా మూవీ ఖచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది అనే ఒక బలం వచ్చింది మాకు. చాలా బాగా చూపించారు మాకు అండ్ మంచి మనసుతో మేము ప్రార్థన చేసాము. సో మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ కల్పించిన సార్కి అండ్ ఇక్కడికి రావడానికి మాకు వచ్చిన ఛాన్స్ వచ్చినందుకు మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. नहीं, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके. मैं बहुत सालों के बाद दरगाह आ रही हूँ और हम बस आई थिंक दुआ से ज़्यादा आई थिंक बस शुक्रिया करने आए हैं कि हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई और 17 तारीख को रिलीज़ हो रही है. कि इतनी शक्ति से उन्होंने हमारी फिल्म कंप्लीट की और ऑलरेडी इतना प्यार मिल रहा है. तो 17 तारीख को रिलीज़ हो रही है और न्यू अंदर की सिनेमा तो फैमिली तो फ्रेंड्स तो स्पार्क स्टूडेंटी एंड प्लीज़ ब्लेस द फिल्म. विल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू. तेलंगाना बीआरएस पार्टी के सदर वजीर केटीआर ने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के डेलीगेट्स से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान फोरम के मसाइल से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस मीटिंग के दौरान सारे बड़े रहनुमा मौजूद थे। एआईएमआईएम के मुताबिक नामपल्ली हलके से माजिद हुसैन को एमएलए कैंडिडेट के तौर पर लड़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी और बाकी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कायदे मुकर्रना कुलियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत और फ़ख्र की बात है कि सदर मजलिस ने, सदर बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी साहब ने मुझ जैसे एक वर्कर पर अपना एतमाद जताया और हमें मौका दिया नामपल्ली के अवाम का खिदमत करने का। मेरे लिए सदर मजलिस के भरोसे की बड़ी अहमियत है। सदर मजलिस पर एक अहमियत और उनकी जो भरोसा है वो बहुत मायने रखता है। मुझे ये मालूम है अगर मेरे को सदर मजलिस के भरोसे पे खरा उतरना है तो मेरे को नामपल्ली के अवाम के तवक्कुआत पर, इब्तिदाई सदर मुतमदीन के तवक्कुआत पर खरा उतरना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे सदर का भरोसा टूटने नहीं दूँगा। मेरे सदर ने जो मुझ पर एतमाद किया है और उसके लिए दिलो जान मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह नामपल्ली की अवाम के तवक्कुआत पे पुरजोर तरीक़े से उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इब्तिदाई सदर मुतमदीन जो सदर मजलिस हमेशा कहते हैं कि जमात की लीड की थी उसको और मजबूत करेंगे, उनको साथ लेंगे, उनको और ताकतवर बनाएंगे ताकि वो भी अवाम की और जस्तजू से मेहनत कर सकें। और इंशाल्लाह नामपल्ली में जिस तरीके से तरक्याती काम मेरे बड़े भाई जाफर हुसैन मेरा साहब ने किए हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जब जाफर हुसैन मेरा साहब यहाँ पे एमएलए थे कई करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हुए, इंशाल्लाह उसी को आगे बढ़ाते हुए
गौशा महल के बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह ने अपना पहला नॉमिनेशन एबिट्स के रिटर्निंग ऑफिस में दाखिल किया। वहां से वो धूलपेट में आकाशपुर मंदिर वापस गए और पूजा करने के बाद कैंडिडेट टी राजा सिंह ने बाइक रैली निकाली। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।